Hello everyone. I am so happy today to let you all know that one of our candidates, Kevin Jose, he was recommended twice, and first time he was merit out, and this time he is merit in. Last night he called me up and he told me the good news that he is merit in and he has been asked to report to Air Force Academy on 15th of January. As you are all aware, JW Sitanshu Mishra and Ritu Shekhawat are already there in Air Force Academy. Their reporting date was 8th of January. So now our three stars are shining in the Air Force Academy. I am so happy. I am so proud of them. It's not my effort. It's not my effort. It's their hard work. I only showed them the path to success, and they ran and they won. You can also do it. I'm really so happy. I have no words to express. Three of them in the Air Force Academy, and you see, January they have joined, and December 2023 in the passing out parade, graduation parade, they will come out as officers. Three officers, three of my children will be commissioned in December 2023. It's a moment of pride for me, for all of us. I am so happy that they have shown the results, and this enforces the confidence again in me that we all are moving in the right direction. We are moving towards achievement of our goal. Thank you so much for having so much of faith and trust in me. You are my family. You are like my family, you are like my children. And I will like to do whatever is possible to make you succeed in life. I am your life coach. Chalo, let us start. So, today I will take few questions, and the first one is Arpana Singh. Sir, when interview officer asks meaning of candidate's name, then telling about surname meaning is necessary or not? So Arpana, I think she is an NDA candidate, fresher. So Arpana, it is not required. Whatever is asked, whatever question is asked to you, you answer that only. Don't add something and don't reduce something from the question which is asked. Listen to the question carefully. The IO will ask you what's the meaning of your name. No one asks the meaning of surname. So Arpana, you tell what is the meaning, and that's all. So surname Singh, meaning is no one will ask you. Next question. Sirius Brown. Sir, I know it would be difficult for you to review a TAT without seeing the picture. Yes, without seeing picture, the TAT story is not reviewed. But if you find my explanation understandable, then please provide some guidance on that picture. Picture is a man sitting on a chair with headphones and driving something. Behind him, a girl holding a gun and threatening him. I don't have any ideas because the driving handle seems to be a airplane हैंडल. तो देखो, मैं थीम बताता नहीं हूँ, थीम आपने अपने आप सोचनी है, because I don't want to transplant my thoughts and ideas in your mind. Originality will be killed, originality will be sacrificed. तो आप स्टोरी लिख के भेजते, पिक्चर मुझे व्हाट्सएप पे भेजते तो मैं आपकी पिक्चर को रिव्यू करके बताता. बट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ थॉट्स और आइडियाज आई डू नॉट डू. बट दिस मच, चलो एज एन एक्सेप्शनल केस इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि एक मेल है, एक फीमेल है. पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एज और जेंडर आप का डिसाइडिंग फैक्टर हो हीरो चुनने में. दे आर सेकेंडरी. अब इन दोनों में दोनों ही इक्वली एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रहे हैं. तो यू कैन आइदर चूज द मेल एज द हीरो और द फीमेल एज द हीरो.
Female is holding a gun, a pistol in her hand, and the man is sitting and holding some sort of steering or something. Now, if it appears to be a cockpit of the plane, then you write a story accordingly. If it appears to be a motor vehicle on the road, you write the story accordingly. Okay, because it is not shown that if it is an aircraft that it is flying or not flying, or it is taking off or landing, that is your imagination. तो अगर मेल को हीरो बनाते हो तो मेल इस जो लेडी है जो गन लेके उसको थ्रेटन कर रही है, उस लेडी को उसका जो पिस्टल है वो स्नैच कर लेता है, लेडी को ओवरपावर कर लेता है. लेडी नेगेटिव कैरेक्टर है इन दिस केस, द मैन इज द हीरो. और अगर लेडी हीरो है तो द मैन इज ए नेगेटिव कैरेक्टर. दिस लेडी हैज गॉट द करेज एंड स्टेमिना टू नैप दैट नेगेटिव कैरेक्टर. अब अगर ये एयरक्राफ्ट है तो ये प्लेन हाईजैकर हो सकता है, और अगर रोड की कोई गाड़ी है तो कोई भी आदमी हो सकता है, कोई क्रिमिनल हो सकता है. और इन दैट केस जब ये लेडी हीरो है तो ये इंटेलिजेंस से हो सकती है, ये आपके जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप होते हैं उनसे हो सकती है. अकॉर्डिंगली स्टोरी यू हैव टू राइट. सो आई हैव गिवन यू बोथ द ऑप्शंस कि अगर मेल को हीरो लेते हैं तो क्या होगा, फीमेल को हीरो लेते हैं तो क्या होगा. चलिए, प्रदीप पनवर, जय हिंद सर. माई सेकंड कमेंट इन योर वीडियोज, और आई कैन से माई सेकंड डाउट. सर, आई हैव वॉच्ड योर वीडियोज regarding percentage drop in 12th and graduation. Sir, I scored 91.6 in 10th, very good. 83.6 in 12th, nice. My percentage dropped since I was a house captain. And no, Pradeep, no. Don't point fingers towards circumstances. Don't point fingers towards anyone. When you blame the circumstances, when you blame the people, three fingers point towards you. That, dear, remember, you are the culprit. It's your responsibility. Blame lies in you, in no one else, not the circumstances. तुमको बोलेंगे कि बॉर्डर पर जाओ, दुश्मन की चौकी ध्वस्त करके आ जाओ, तो यू विल से कि सर वो एक्चुअली लैंडस्लाइड हो गया था, सर बारिश बहुत तेज पड़ गई थी, सर मेरे साथ कोई आया ही नहीं, लोगों ने मुझे सपोर्ट ही नहीं करा. तो योर आंसर्स, आई नो दे आर जेन्युइन, बट देन यू हैव टू ओवरकम दैम. और जो गलती हो गई तो हो गई, एक्सेप्ट कर लो, बस एक्सेप्ट कर लो और कुछ नहीं. सर माई फॉल्ट, आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल. देन यू विल से कि नो टेल मी. जब सेकंड टाइम पूछा है तो स्टिल यू से कि सर इट इज माई फॉल्ट. Actually, I paid more attention towards these things. Why? Because of my immaturity, because of my extra josh to get this thing done. इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है. What he has written, I really appreciate that. But interviewing officer will not appreciate. He will see that you are blaming the circumstances. गलती तुम्हारी है को भाई तुमको किसने बोला था, और क्या दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते थे. इस बात को समझो आप. It was my responsibility to take my house to the top, which I did by various means. Very good achievement. This led to missing my classes. No, very bad. Sometimes, but I caught up what was taught in the class. Okay, आपने कैचअप कर लिया तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दो. Secured 72% in pre-board, but with hard work I secured 83.6. Again very good. Similarly, sir, अब 12th में प्रॉब्लम हो गई तो हो गई, अब फिर ग्रेजुएशन में आप प्रॉब्लम बता रहे हो. सिमिलरली सर, ग्रेजुएशन और टोटल परसेंटेज इज क्युमुलेटिव ऑफ ऑल द 3 सेमेस्टर्स. आई गॉट 6.2 इन फर्स्ट सेमेस्टर, वेरी लो. अगेन इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर. आपका ग्राफ डाउन जा रहा है, वहाँ आप बोल रहे थे कि सर मैंने हाउस को ऊपर उठा दिया इसलिए मैं नहीं कर पाया. यहाँ क्या हो गया? नाउ यू आर सेइंग आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द राइट अप्रोच. भाई हुज फॉल्ट इट इज? कौन अवेयर कराएगा आपको? बाकी जिन लड़कों के नंबर आए, 8 CGP आया, 9 CGP आया, उनको किसी ने कान में अलग से मंत्र डाला था.
तो ये सब आपकी बहानेबाजी समझी जाएगी। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड इट हैपेंस, ऐसा तुमने कुछ भी नहीं करा है, तुमने अच्छा काम करा है, कोई बुरा काम नहीं करा है तुमने, लेकिन उसको जो रैशनलाइज कर रहे हो आप जो उसके कारण बता रहे हो, सर एक्चुअली ये हो गया था, सर एक्चुअली वो हो गया था, काम तो बिगड़ा ना, काम बिगड़ा है और आपकी वजह से बिगड़ा है, आप जिम्मेदारी उठा लो और सर आगे से नहीं होगा और आगे इम्प्रूवमेंट दिखा दो। एनालाइज माई रॉन्ग अप्रोच, ओके वेरी गुड, एंड करेक्टेड इन my CGPA increase, that is 7, very good. Second 7.5 and in third 7.5 in third, 7.7 in fourth, very good. Fifth was affected due to COVID, देखो फिर आप कारण बता रहे हो, and got 7.1 as average. Last semester my sister wedding was there, अरे भाई ये नहीं आपकी कोई बात सुनी जाएगी वहां पर। एंड फादर बीइंग इन आर्मी, इट वाज माय सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर प्रिपरेशन एंड अदर स्टफ्स एंड गॉट 6.9। तो आप देखो, आप ऊपर नीचे आपका जा रहा है और ये आपकी कमी है। इस कमी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि सर इट वाज माय फॉल्ट, देयर वर फ्लक्चुएशंस and there was no consistency. Of course there were some extraneous reasons also, इतना बस आप कह सकते हो, there were some influencing factors also, but then I take full responsibility of my performance. I will not pass on the blame to anyone. मैंने ABC बताया है ना, प्रॉब्लम को अवॉइड मत करो, कुर्सी के मेज के नीचे मत खिसका दो, कारपेट के नीचे मत खिसका दो, बाद में देखेंगे। आपका ये एटीट्यूड उस समय रहा है, बाद में देखेंगे, अभी तो ये कर लेते हैं, अभी तो हाउस को जिता देते हैं यार, पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे। तो यू हैव नॉट कन्फ्रंटेड द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी उठानी पड़ रही है और इस बात का जवाब देना पड़ रहा है। आगे बच्चों के लिए सब ये चीज़ आप समझ लो, जो अभी NDA वाले बच्चे देख रहे हैं या 11th-12th वाले बच्चे देख रहे हैं, कि आपकी पुअर परफॉर्मेंस का कोई भी जवाब, कोई भी बहाना एक्सेप्टेबल नहीं है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ यू हैव परफॉर्म पुअरली देन डोंट गिव एक्सक्यूजेस फॉर दैट। दिल बड़ा करके बोलो सर मेरे से गलती हुई थी, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, डोंट गिव एनी एक्सक्यूज। So when I state these doubts as my drop in percentage, are these considered positive by IO? No my dear, they are not considered positive. ये IO thinks कि you are trying to pass on the blame for your faults. तो एक तो फॉल्ट आपकी ये हो गई कि परसेंटेज कम आई, और उसके बाद में दूसरी बड़ी फॉल्ट ये है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और आप बता रहे हो सर ये हो गया था, सर वो हो गया था, सर मैं तो बहुत मेहनत करी सर, पर क्या बताऊँ सर, पेपर ही डिफिकल्ट आ गया था सर क्या बताएं, टीचर पढ़ाती ही नहीं है सर स्कूल में पढ़ाई तो होती ही कुछ नहीं है, सर क्लासेस ही नहीं हुई, सर कोरोना का तो आपको पता ही है। अरे भाई, काम ना करने के 1000 बहाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई यू हैव रिलैक्स्ड और समथिंग, बट परसेंटेज डाउन आई है ना आपकी, तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और कुछ कोई रास्ता नहीं है। सीधा सा आप जवाब दीजिए कि सर मेरी गलती है, it is my mistake and I have tried, I have improved also. Again somehow there were some extraneous reasons, and now when I look back I realized that I was not mature enough. Others have done better than me, sir. Yes, I accept that, but now this is as a driving force for me. Others may be celebrating their good performance, they should celebrate, but now I am determined to put in more effort and get through the best which I can achieve. I will not leave anything now. That is my determination. तो कितना अच्छा जवाब आपका आएगा, और ये सोच भी होनी चाहिए। मैं कोई जवाब नहीं रटवा रहा हूँ आपको कि ऐसा जवाब दे देना तो ठीक हो जाएगा। ये आपकी सोच होनी चाहिए। This should be your thinking. This should be your thought process. Lado and Anush, sir, very informative video you are sharing. Sir, 2 questions I want to ask. Number 1, why you were not selected in your previous SSB? भाई मैंने तो एक ही SSB जिंदगी में दिया था, उसमें हो गया सेलेक्ट। So this is your question that the IO is asking, why you were not selected in your previous SSB? तो इसका कारण तो आप ही बताओगे ना, क्या कारण है, क्यों नहीं सेलेक्ट हुए, क्यों नहीं रिकमेंड हुए?
प्रिपरेशन वॉज नॉट अप टू द मार्क। अब आपके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। सर मैं फिजिकली मैंने मेहनत नहीं करी थी, जीटीओ अच्छा नहीं हुआ, मेरा आईओ अच्छा नहीं हुआ, मेरी जीके करंट अफेयर्स अच्छी नहीं तैयारी थी। कुछ लोगों का ये आंसर होता है, 90% 95% का आंसर होता है सर साइक। माई साइक वॉज नॉट अप टू द मार्क। मेरा साइक टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। साइक टेस्ट क्यों नहीं अच्छा हुआ? सर मेरा थॉट प्रोसेस ठीक नहीं था, मेरी थिंकिंग ठीक नहीं थी। दिस इज व्हाट आई रियलाइज। क्योंकि साइक में कोई स्टोरी रट के नहीं लिख सकता है, कोई WAT रट के नहीं लिख सकता है। प्रिपरेशन करने से हेल्प मिलती है, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए। और थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होगा? बार बार मैं ये बात बताता हूं आपको कि लिव योर लाइफ द वे यू शुड लिव। जब जिंदगी सही तरीके से जियोगे तो आपके थॉट्स, आपके आंसर्स, आपकी स्टोरी सब कुछ सही आएगा। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ दैट आई एम योर SSB कोच। नो, आई एम नॉट योर SSB कोच। आई डू नॉट डू एनी कोचिंग फॉर SSB। आपकी पढ़ाई में हेल्प जरूर कर देता हूँ मैं, लेकिन SSB की कोई कोचिंग मैं नहीं करता। आई एम योर लाइफ कोच। मैं ज़िंदगी जीने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और ये खाली SSB वालों के लिए नहीं है, ये आउटसाइड दी SSB जो किसी भी जॉब की, किसी भी IAS की, PCS की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, ये सारा प्रोसेस उसके लिए भी है। और अगर वो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, आई विल आंसर हिज क्वेश्चन ऑल्सो, because I am training you for life. I am not training you for SSB. SSB is only a process which you will clear if your life is on the right track. So why you were not selected? My thinking was not correct, sir. How thinking was not correct? मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ा सिंपल तरीका, ABC and path. तो ABC क्या है? Which you should not do. Path क्या है? Which you should do. तो आपका परफॉर्मेंस में क्यों खराबी हुई, थिंकिंग क्यों खराब हुई? क्योंकि मैं ABC करता था। व्हाट इज ABC? अवॉइड। मैं प्रॉब्लम को अवॉइड करता था, बचता था। अपनी वीकनेस के लिए आई यूज्ड टू पास ऑन द ब्लेम, आई यूज्ड टू पास ऑन द ब्लेम टू द सर्कमस्टेंसेस, टू अदर्स, एंड आई वॉज नॉट हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स माई सेल्फ। आई वॉज जस्ट एक्टिंग एज ए पोस्ट ऑफिस टू पास ऑन द प्रॉब्लम टू अदर्स बाय कंप्लेनिंग और बाय इन्फॉर्मिंग। तो ये मैं गलतियां करता था सर। आपने कन्विंस कर दिया ना उसको। और भी अगर कुछ करते हो तो आप बता सकते हो, ये तो एक जनरलाइज थॉट्स मैं आपको बता रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल प्रिपरेशन यू हैव डन दिस टाइम टू क्लियर SSB? तो बताओ मुझे, व्हाट स्पेशल प्रिपरेशन यू हैव डन? अब इसका आंसर है पाथ। सर आई हैव चेंज्ड द वे आई यूज्ड टू थिंक, आई हैव चेंज्ड द वे आई यूज्ड टू बिहेव, आई हैव चेंज्ड माय एटीट्यूड। Now I look for goodness in others. I praise them for even small acts of kindness or goodness that they have done. I look at the positive side of life. Earlier I used to run away from responsibility by just passing on the buck, by informing, by complaining to people. Now I take action. I take additional responsibility on my shoulders. I don't avoid the situation, I face it. That's the way I have changed my thinking. Additional responsibility हो गया, praise हो गया, I do thank everyone. I give thanks to everyone for even small acts of kindness or goodness that they do. So I have made more friends. I have become more adaptable. Now I am welcome in my friend circle. Earlier, because of these habits, my friends did not like me perhaps. And now they feel happy in my presence. This is the way I have changed. By taking additional responsibility, by thanking, by praising, and by genuinely helping people whenever they are in need. So I go out of the way. He may say, okay, give me an example. Sir, earlier whatever notes I have prepared, I used to hide and did not share with anyone. Now I offer my notes to them. I offer them for group study. Whatever topics I have learned, I have prepared, I want to do. And in SSB also, sir, here. और ये बता रहा हूँ मैं आपको
संयम अग्रवाल, सारे नोट्स जिसने उसने बनाए थे, ही इज नाउ इन एनडीए, सारे नोट्स जितने बनाए थे एसएसबी में, आई हैव टोल्ड हिम दिस थिंग कि आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना लोगों की, ये छिपाने से तुम्हारे नोट्स तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। एंड ही सेड सर आई शेयर्ड विद एवरीवन। वो सारे अपने दोस्तों को, टीम वालों को उसने बोला यार मेरे पास यूक्रेन के नोट्स हैं, मेरे पास इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स हैं, मेरे पास नेबरिंग कंट्रीज के नोट्स हैं, यार ले लो। सारे दौड़ दौड़ के आ गए, यार दिखाना दिखाना जरा। ही did good bonding with them and this helped him in his outdoor GTO. This helped him in his group discussion and group planning. उसका क्या गया भाई, जो उसने नोट्स बनाए वो तो उसके दिमाग में है, उसका क्या गया, बट इसका एटीट्यूड उसके काम आया। और 119 रैंक आई है उस लड़के की, ही इज नाउ इन एनडीए 119। कैन यू इमेजिन? बाय चेंज ऑफ एटीट्यूड। थिंकिंग चेंज करो। थिंकिंग नहीं चेंज करोगे और आप सोचोगे कि एसएसबी में क्लियर कर लूंगा, सॉरी माय डियर फ्रेंड, सॉरी, नहीं हो पाएगा बच्चे। जब तक थिंकिंग नहीं चेंज करोगे, सबकॉन्शियस उछल उछल के आपके बताएगा कि अरे यार ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है तू, तेरा नुकसान हो जाएगा। ये सबकॉन्शियस आपको बोलता रहेगा आपके दिमाग में, और आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो वही करूँगा जो सबकॉन्शियस बोल रहा है। समझ लो, अपनी लाइफ को चेंज करो। और अगर आप रियली एसएसबी में सक्सेसफुल होना चाहते हो और लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, एबीसी पाथ को कभी मत भूलना। मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताया, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि बस ये 5-7 चीज़ें मैंने बता दी, बहुत है। इतना तो कर लो, पहले इतना कर लो, आगे के भी और भी बता देंगे और अपने आप भी और समझ में आ जाएंगी। श्रीतम दास, हेलो गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ श्रीतम, आई हैव वन डाउट सर। गुड मॉर्निंग श्रीतम, बताइए क्या डाउट है। सर आई हैव अपीयर्ड फॉर एसएसबी 2 times फॉर आर्म्ड फोर्सेज, 1 through SSC OTA. In my first attempt I was conference out, in my second attempt I was screened out. I want to know sir, in upcoming months I have AFSB, so there I will be treated as fresher or repeater or screen out. Sir, if I stand in the screen out line candidate, is that affect my screen process? देखो, आप कहीं खड़े हो जाओ, वो पहली बात तो ब्लफ करने की कोशिश उनको करना मत आप, ठीक है। एक बार कॉन्फ्रेंस आउट इज कॉन्फ्रेंस आउट, फिर वो रिपीटर है, स्क्रीन आउट नहीं है। तो स्क्रीन आउट की लाइन में खड़े होने का कोई मतलब आपका बनता नहीं है। जब आपने पहली बार आप फ्रेशर में खड़े हुए, उसके बाद में आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो यू आर नाउ कॉन्फ्रेंस आउट, यू आर ए रिपीटर। और दूसरी बार आप कॉन्फ्रेंस आउट की रिपीटर की लाइन में खड़े हुए तो वहाँ स्क्रीन आउट हो गए। तो अब आप ऐसा नहीं है कि अब आप स्क्रीन आउट हो जाओगे, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओगे, फिर स्क्रीन आउट हो गए। देखो, स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट का अंतर क्या होता है, रिपीटर के मतलब क्या होता है। रिपीटर के मतलब ये है कि यू हैव बीन एक्सपोज टू द सिलेक्शन सिस्टम। आप जो 5 दिन का टेस्ट होता है, साइक, जीटीओ, आईओ, सब आपको एक्सपोजर मिल गया उसका। हालांकि एक्सपोजर तो आजकल सब कोचिंग में भी मिल जाता है, ठीक है, वो सब बात नहीं है, लेकिन वो अपने टेस्ट के एक्सपोजर की बात कर रहे हैं कि आपको टेस्ट का एक्सपोजर मिल गया, सो यू आर ए रिपीटर। तो वो तो आपको पहली बार में मिल गया था टेस्ट का एक्सपोजर, सेकेंड आउट टाइम स्क्रीन आउट हो गए, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका एक्सपोजर खत्म हो गया। जो एक्सपोजर लाइफ में एक बार मिल गया वो मिल गया, सो यू आर ए रिपीटर। फिर भी आप जब वहाँ जाओ, दोनों बातें बता देना, सर फर्स्ट टाइम आई वॉज कॉन्फ्रेंस आउट, सेकेंड टाइम आई वॉज स्क्रीन आउट, वेयर शुड आई स्टैंड, पूछ लेना उनसे। आपकी किस्मत अच्छी है, वो बोलेंगे तुम फ्रेशर में आ जाओ तो फ्रेशर में खड़े हो जाना ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप उनको सच्चाई बता दीजिए। और जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप रिपीटर ही काउंट हो गए। अब आगे सारे टेस्ट में आप रिपीटर काउंट हो गए, 1 टाइम रिपीटर, 2 टाइम रिपीटर, जितना भी। अगर ऐसी बदकिस्मती आपकी है कि आप बार बार रिपीटर हो रहे हो, और अगर आप अपनी थिंकिंग और पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हो, तो फिर आप रिपीटर नहीं, फिर तो आप एयरफोर्स एकेडमी में खुले बाहों से आपका स्वागत होगा। चलो, कीप आस्किंग, एंड सम ऑफ यू हैव रिटन वेरी नाइस कमेंट्स फॉर मी, विशिंग मी गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ. I really thank you so much from my heart that
for your kind words and your feelings and your expressions. Thank you and keep on watching and write your comments in the comments box. Bye bye.